Hello friends, this is Mainak from Civil Center and I welcome all of you to the 12th episode of CKDKMK, that is Civil के दुनिया के मजेदार किस्से. So friends, in this episode we have with us engineer Kumar Nishant Ujjwal. So to give a brief introduction about him, engineer Kumar Nishant Ujjwal graduated in civil engineering from KIT University in the year 2016. He was among one of the branch toppers and he was also awarded with KIIT Merit Scholarship during his bachelor's course. After that, he had also got placed in Shapoorji, which is one of the leading companies of civil engineering, but he decided to continue in his field of interest, that is geotechnical engineering. So, after clearing GATE, he had joined IIT Patna to do MTech in geotechnical engineering. And there, he was awarded with Chairman's Gold Medal and Institute Silver Medal. He has also successfully published 2 articles in peer-reviewed journals. Now, let us discuss about his work experience. After completing his MTech, he had joined as an assistant professor in JECRC Deemed University, Jaipur, and worked there for 6 months. After that, he had joined as an assistant engineer in Government of Bihar and he's working there since last 1.5 years. So without wasting any time, let's get started and welcome engineer Kumar Nishant Ujjwal. So friends, on behalf of all our viewers, we will welcome engineer Kumar Nishant Ujjwal. So Nishant sir, very good evening to you and it's a pleasure having you on with us. Good evening, Mainak. How are you? Yes, I'm doing good. Thanks for having me here. Yes, our pleasure. It's our pleasure that you have taken out time from your work for our viewers. It's really great. So first, let us start with your work experience. You are currently working as an assistant engineer in Government of Bihar since 1.5 years. So how was your experience there? Yeah, Mainak, when I talk about my experience in Government of Bihar as assistant engineer in last 1.5 years, I would say it was quite good. Man. I enjoy working here, and the most important thing is मैं सभी experienced लोगों से मिल रहा हूँ. Most of the people जो कि senior हैं या मेरे कुछ जूनियर इंजीनियर्स वगैरह भी हैं, लोग सब एटलीस्ट 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, तो फील्ड का और मे बी सिस्टम का बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है उनसे. और बात रही कि प्रैक्टिकल चीज़ों की, जैसे कि सब कुछ बुक्स में नहीं होता. कभी कभी जैसे मस्ट बी नोइंग दैट बिहार इज ए फ्लड प्रोन, तो जब बाढ़ आती है तो द मेजर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोड ओनली ड्यूरिंग फ्लड. तो क्या होता है कि ये कट जाते हैं, तो दैट टाइम योर स्ट्रेटजी वोंट वर्क, मींस योर एक्सपीरियंस विल कम इनटू द पिक्चर. So sometimes when we sit in the idle time, they will share their experiences, and that is very good to learn. So overall, I will say it is great working here. Basically जो हमारा एज ए सिविल इंजीनियर्स मोटो है, हमारा मोटो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है. जैसे कि आपने बताया कि आपको मतलब इतने एक्सपीरियंस लोग मिले, तो बेटर है कि मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं बिहार में, वो प्रॉब्लम के बारे में आप जान सकते हैं एक्सपीरियंस लोगों के साथ. तो जॉब ज्वाइन करने से पहले आपका क्या एक्सपेक्टेशंस थी? जैसे आप बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ज्वाइन करने से पहले कुछ सोच के रखे थे कि ऐसा होगा, कि मतलब कुछ डिफरेंट सोचे थे? देखिए क्या था कि जब मैं ज्वाइन करा था उससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था JECRC यूनिवर्सिटी में. तो क्या था कि वहाँ ऐसा था कि जो हमने पढ़ा वही चीज पढ़ाना है, सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो था. मतलब कुछ प्रैक्टिकल चीजें नहीं थी, हमने जो पढ़ा वही बच्चों को इम्पार्ट करना है, काइंड ऑफ क्लासरूम स्टडी. जो आप लोग जैसा कर रहे हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो भी बहुत रेयर ही होता था वहाँ डेट इज सिंपली क्लासरूम ट्रेनिंग. तो वो ज्यादा डिफिकल्ट या चैलेंजिंग जॉब नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो बहुत मतलब थोड़ी मोड़ी डिफिकल्टी हुई. पहला तो सिस्टम को जानना, हाउ डज सिस्टम वर्क. दूसरा है कि बीइंग हिंदी बीइंग माय मदर टंग इटसेल्फ, बट द वर्किंग जो वर्क होता है इधर वो पूरी हिंदी में होता है. तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि टेक्निकल चीजें हमें पता है लेकिन कैसे काम करता है वो हमें नहीं पता. तो क्या है कि वो हिंदी को जानना कुछ बहुत मतलब बहुत ही नॉर्मल से वर्ड जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है, दैट वाज वेरी मच न्यू फॉर अस. कैसे क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
तो थैंक्स टू माय सीनियर्स ओवर हियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो हमारे हैं, जो भी हैं ये प्रिटेंडिंग इंजीनियर्स, उन्होंने बहुत हेल्प किया। मतलब वो जान रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो टेक्निकली साउंड है, लेकिन क्या है कि इनके पास इस तरह का मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने काफी हेल्प किया, बहुत कोऑपरेट किया। और अभी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है कि नाउ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फिट हो गया उस सिनारियो में, ऐसा कहा जा सकता है। तो सर आप जॉब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने से पहले, अभी तो बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उससे पहले प्रोफेसर थे, उससे पहले जब आप एमटेक में थे, जब मास्टर्स कर रहे थे, तो वो मास्टर्स का आपने अवार्ड पाया हुआ है, चेयरमैन गोल्ड मेडल अवार्ड एंड इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल आईआईटी पटना से। तो मास्टर्स का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, रिसर्च फील्ड में आप मतलब कैसे प्रोसीड किए, जो पेपर्स आपने पब्लिश किए हैं, जो पीयर रिव्यूड पेपर्स जो आपने पब्लिश किए हैं, तो रिसर्च में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और रिसर्च के साथ कैसा इंटरेक्शन था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए माइनाक, ऐसा था कि आफ्टर 5th सेमेस्टर इन बीटेक, मतलब 6th सेमेस्टर से काफी सारी चीजें मुझे पता चलने लगी सिविल में, जो कि मुझे बहुत फैंटेसाइज किया उन्होंने, जैसे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे पता लगा कि बीटेक का जो नॉलेज है वो उतना सफिशिएंट नहीं है उन सब चीजों के क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि मैं बताऊं सिंपल सा एक एग्जांपल, सब लोग जान रहे हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है। तो एज ए सिविल इंजीनियर हमें लगता है कि नॉर्मल लोगों को लगता है उसका नाम ही है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, दैट वाज डिजाइन्ड लाइक इट इज नाउ, बट when you go into its history, आपको पता चलेगा कि the soil was soft there, it was not having that much bearing capacity, and thus resulting into its unstable foundation. तो क्या हुआ कि ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत हद तक तो बैचलर कोर्स जो हमारा होता है इस तरह से डिजाइंड है कि सारी चीजों को सरफेस टच होता है, लेकिन अगर आपको किसी चीज में डीप इंटरेस्ट हो रहा है तो उन सब चीजों का जवाब आपका ये बैचलर कोर्स नहीं दे पाता है। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो अलग होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगा कि अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई फॉर गेट, अगर कुछ अच्छा होता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दैट विल बी वेरी गुड। तो मैंने सोचा कि चलो आई विल राइट गेट एंड देन इफ समथिंग गुड हैपन आई विल जॉइन सम गुड प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो क्या हुआ कि शाहपुर जी में प्लेसमेंट हुआ था मेरा, फिर शाहपुर जी लगा कि चलो ये एक बैकअप ऑप्शन है। तो शाहपुर जी वाज फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ दैट वाज बैकअप ऑप्शन। तो मैं थोड़ा सा अपने गोल से थोड़ा सा डेविएट हुआ था, मे बी अराउंड 1 मंथ। तो मुझे लगा अच्छा शाहपुर जी, तो इट्स अ गुड कंपनी, आई कैन जॉइन इट। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मेरा गोल तो ये नहीं है शाहपुर जी, आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू, मींस आई हैव टू डू समथिंग न्यू। तो मैंने सोचा कि चलो वापस से अपनी गेट की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैं वापस से गेट की तैयारी शुरू की। तो ऐसा था कि आई हैव टू गेट मींस गुड इंस्टीट्यूट, मींस सिर्फ एमटेक करना गोल नहीं है, लेकिन ऐसे जगह से करना है जहाँ पे आपको आइडियाज को या वगैरह वगैरह जो भी आपको सपोर्ट मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो या वैसे सराउंडिंग हो, वो सारी चीजें होनी चाहिए, उतनी वेल इक्विप्ड लैब होनी चाहिए, तभी मैं एमटेक करने के लिए था। और दूसरा मेरा एक प्लान था कि मुझे सॉइल में ही करना है, क्योंकि सॉइल में क्या है कि फाउंडेशन में, जैसे इसका मैं एक आपका जैसा शो है सिविल की दुनिया के मजेदार किस्से, तो एक तो मेरे होम टाउन का एक वीडियो आया था मेरे व्हाट्सएप फॉरवर्ड होके, मेरे फादर ने फॉरवर्ड किया था। तो उसमें क्या हुआ कि सडनली एक बिल्डिंग विद इन फ्यू मिनट्स इट कोलैप्स्ड वर्टिकली। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तो माय फादर इज आल्सो ए सिविल इंजीनियर बाय द वे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ करके। तो उन्होंने बताया कि द फाउंडेशन डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन वाज नॉट सफिशिएंट। तो हमने एडवाइस किया था उस बंदे को कि आप फाउंडेशन का डेप्थ बढ़ाइए, लेकिन उन्होंने अपना कॉस्ट सेविंग के चक्कर में फाउंडेशन का डेप्थ कम कर रखा, ठीक है। और वहाँ की सॉइल भी थी, वो सॉफ्ट सॉइल थी, तो द बिल्डिंग अल्टीमेटली कोलैप्स्ड। तो मेरा हुआ कि फाउंडेशन में तो 10 to 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट लग सकता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने उसको पूरा बना दिया, प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया, बट फाउंडेशन प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं हुआ, तो आपका स्ट्रक्चर का जो पूरा कॉस्टिंग था दैट वेंट इनटू वेन। तो ऐसा था कि जियोटेक इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। तो मेरा था कि जियोटेक में करना है और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है। तो मैंने वापस से शुरू किया अपना तैयारी, फिर गेट में डिसेंट स्कोर पाया मैंने। फिर मुझे
कुछ पुराने आईआईटीज थे जिसमें कि मुझे मिला था एनवायरनमेंट और वाटर रिसोर्सेज, लेकिन आई वाज नॉट कीन इनटू दोस। आपको जियोटेक में जाना था? अल्टीमेटली क्या जियोटेक वाज फिक्स्ड, तो जियोटेक वाज फिक्स्ड दैट अगर करना है एमटेक तो जियोटेक में करना है, नहीं तो आई हैड ए बैकअप प्लान शाहपुर जी। तो फिर अल्टीमेटली आई गॉट जियोटेक इन आईआईटी पटना, तो वहाँ मैंने किया। फिर वहाँ जाके पता चला कि रेजोनेंस नाम की मतलब स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स का एक कोर्स था। पता चला कि रेजोनेंस का बहुत ब्रीफ आइडिया था हमें बीटेक लेवल पे, लेकिन जब स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स जो कोर्स आया उसमें लगा कि रेजोनेंस इतनी खतरनाक चीज है कि मतलब एक बड़े से टैकोमा नैरो ब्रिज, यू मस्ट हैव हर्ड, मींस हाफ ए ईयर, मतलब 6 महीने के अंदर ही, ऑपरेशन के अंदर ही रेजोनेंस के कारण वो ब्रिज कोलैप्स हो गया। और मैंने जब एक्सप्लोर किया अपने, जब डायनेमिक्स वगैरह हमने पढ़ा तो देखा कि ये रेजोनेंस तो कुछ चीज होती थी जिससे कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ता है, लेकिन इतनी खतरनाक चीज है कि ये एक ब्रिज को विद इन सेकंड कोलैप्स कर सकती है। तो फिर लगा कि यार ये रेजोनेंस तो और भी अच्छी शानदार चीज है, इसको पढ़ना बनता है। तो इसी तरह ग्रेजुअली हुआ कि फाउंडेशन एक पहले से इम्पोर्टेंट चीज है, उसमें अगर रेजोनेंस का तड़का लग जाए तब तो एक बहुत शानदार सी चीज बन जाएगी। इसी तरह इंटरेस्ट कनेक्ट होते गए और फिर अल्टीमेटली मेरा जो प्रोजेक्ट बन के आया वो आया कि डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ रेनफोर्स्ड सॉइल। तो फिर मैंने मशीन फाउंडेशन पे डायनेमिक रिस्पॉन्स देखा उसका, जियोसिंथेटिक रेनफोर्स्ड सॉइल का, तो वो एक अलग चीज है। तो गाइड मेरे थे डॉक्टर अमरनाथ हेगड़े, आई वुड pay my tribute to his hard work that he put behind me। तो उन्होंने बहुत ही मुझे मोटिवेट किया और बहुत हेल्प किया पूरे मास्टर्स कोर्स में। तो सिंपली जर्नी जो है, जो भी मेरे 2 पेपर्स हैं, दैट द होल क्रेडिट गोज टू माय गाइड ओनली। तो his the undivided work and faith he had in me, those resulted in 2 peer reviewed paper and one international conference paper, as you said earlier। तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी था। रेजोनेंस के बहुत किस्से हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। बट अभी हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसे कि बीटेक में हमारा होता है कि रिसर्च फील्ड में उतना शायद 4th ईयर में थोड़ा सा होता है, उतना मतलब डीपली हम लोग नहीं जाते। एमटेक में जब होता है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे जियोटेक है तो जियोटेक के ऊपर ये हाईटेक भी है, तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना, क्योंकि और आपने मतलब एक स्पेसिफिक टारगेट भी था कि आपको जियोटेक में जाना था, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं इतना इंटरेस्ट था कि आप रिसर्च को अल्टीमेट लेवल तक ले जा पाए। तो आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर दैट अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, एमटेक या पीएचडी, तो दैट मोटिवेशन शुड बी फ्रॉम इनसाइड यू, दैट हाँ मुझे ये रिसर्च करना है और इस फील्ड में ही करना है। क्योंकि अगर वो नहीं रहता ना तो अल्टीमेटली आप आफ्टर 1 or 2 months इफ यू डोंट गेट प्रॉपर रिजल्ट, डिजायरेबल रिजल्ट, जैसा रिसर्च ऐसा नहीं होता कि you keep doing something and you will always get results, positive results, expected results। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 weeks of simulations और 2 weeks of experimental study, रिजल्ट क्या होगा, एकदम अपोजिट। So that is also a outcome, that is this way something I did wrong and the result couldn't come। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप बाय फोर्सफुली, या मान लो आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको क्या लगेगा क्या मैं कर रहा हूँ यार, ये मतलब कुछ हो नहीं रहा, मैं इतना मेहनत किया, 2 वीक पूरा वेस्ट हो गया। तो वो चीज कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट आपका नहीं है उस टॉपिक पे तो ये चीज आपके साथ होगी। तो आई वुड सिंसियरली सजेस्ट पीपल दैट whenever you are doing some research you should choose the area of your interest, so that will definitely help in the long run। तो उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने एक सिचुएशन बताया अपने लाइफ का, जब एमटेक में दूसरे कॉलेजेस में मिल रहा था, दूसरे आईआईटी में मिल रहा था, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया है, तो उसको कुछ कॉलेजेस मिल रहे हैं, बट जो उसके इंटरेस्ट नहीं है, उस इंटरेस्ट का ब्रांच उसको मिल नहीं रहा है एमटेक में। एमटेक में रिसर्च होता है एक चीज, और दूसरा सिनेरियो है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, बट वो चाहता है कि एमटेक का एक डिग्री बस चाहिए ताकि उसको मतलब टीचिंग फील्ड में या किसी जॉब फील्ड में मतलब हेल्प हो। तो उसको, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? Mainak, what I would suggest at this point of time that डिग्री की वैल्यू अब ग्रेजुअली घटते जा रही है। इस हिसाब से नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जिस हिसाब से निकल रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, तो
सिर्फ डिग्री दैट आई एम ए बीटेक होल्डर और आई एम ए एमटेक होल्डर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, दैट वोंट हेल्प, दैट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आप कितनी भी अच्छी इंस्टीट्यूट से आप डिग्री कर लो, लेकिन अल्टीमेटली इफ यू डोंट हैव नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड एट दैट लेवल, तो क्या होगा कि लॉन्ग रन में आपको वो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। वो डिग्री आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं वो दैट विल पुल योर लेग। तो क्या है कि सिर्फ डिग्री हो जाए एमटेक की और आपने कुछ सिग्निफिकेंट वर्क नहीं किया, तो क्या होगा कि आप अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी या वगैरह वगैरह में आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो दे विल ब्रश अप योर एवरीथिंग, दे विल स्क्वीज एवरी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ यू कि आपने क्या एग्जैक्टली किया है। तो उस समय क्या होता है कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करना चाहिए। मेरा एक है कि जो चीज भी करो तन मन और धन से करो। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टाइपेंड मिल रहा है तो बस एमटेक कर लो करके, दैट मे बी मींस इकोनॉमिकली आप अगर दैट मच कैपेबल नहीं है, आपकी फैमिली या कुछ वैसे प्रॉब्लम्स हैं, तो एक अल्टरनेटिव है। लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए अगर अनलेस अनटिल कोई और अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है उस तरह का, that is highly not recommended, means you should not follow that practice। तो ये काफी अच्छा सजेशन है कि किसी को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें शायद परसू नहीं करना ही बेटर रहेगा, और इंटरेस्ट है तो कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं डेफिनेटली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, यू हैड रिसीव्ड मेरिट स्कॉलरशिप ड्यूरिंग योर बैचलर्स कोर्स, और आप क्लास टॉपर्स में भी थे, बैच टॉपर्स में भी थे। तो ये आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए कि आपका मतलब पढ़ाई का क्या सीन था, कि सिर्फ पढ़ाई करते थे कि एग्जाम से पहले पढ़ाई करते थे, क्लास अटेंड करते थे कि नहीं करते थे। तो ऐसा मतलब क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं। जैसे कि आपका प्लेसमेंट भी हो गया था और कंपनीज में बहुत बहुत कम बच्चों का होता है स्टार्टिंग में प्लेसमेंट। तो क्या एक्सपीरियंस था आपके मतलब बैचलर्स में, फर्स्ट ईयर में क्या धीरे-धीरे कैसे प्रोग्रेस हुआ, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो आपका ये जो क्वेश्चन है उसके लिए मुझे अपने पूरे बीटेक 4 साल को फ्लैशबैक में लेके जाना पड़ेगा खुद को और आपको भी। और चूंकि आप मेरे भी बैचमेट हो तो बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन क्योंकि आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं तो उनके लिए ये जानना जरूरी है मेरा बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। तो क्या ऑडियंस डिमांड है। हाँ, तो ऐसा था कि 12th में मैं मतलब थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था काइंड ऑफ। तो क्या हुआ कि ट्रिपल ई IIT JEE घर वालों के बहुत एक्सपेक्टेशन थे कि लड़का ये करके लाएगा वो करके लाएगा, समहाउ नहीं हो पाया। ठीक है, थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया। आप अगर मेरी CV भी देखोगे तो दैट 12th थिंग ना, दैट ऑलवेज आंख को खटकता है मेरे और दूसरों को भी। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि कुछ सिग्निफिकेंट मैं नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली अपना किट मिला। That I won't regret now, मींस उस वक्त तो लगता था यार कुछ पढ़ लिया होता तो कुछ मिल जाता बेटर, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता ये, टू बी फ्रैंक। क्या हुआ कि उस वक्त थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था वो मतलब एकदम लो लेवल पे था। तो मेरा इंटरेस्ट चूंकि शुरू से ही सिविल में था, क्योंकि फादर भी मेरे सिविल इंजीनियर हैं, तो मैं देखता आया हूँ साइट एंड ऑल, तो लगता था कि हाँ सब कुछ इतना सही चीज है। मतलब क्या है कि जो दिखता है यार, जो बुक्स में है वही चीज दिखता भी है। जैसे आप देख लो वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग आपको कहीं पे भी आप सड़क पर उतर जाओ, कोई भी बिल्डिंग बन रही है स्टील स्ट्रक्चर, तो आपको वेल्डिंग दिख जाएगा। अगर कॉलम्स हैं तो अगर सर्कुलर कॉलम है 8 बार्स है एट 150 mmcc, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर या बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है सिविल के थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को रिलेट करने की। लेकिन यही अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, अनदर कोर ब्रांच, नॉट आई एम नॉट मींस उसको मैं कहीं से भी नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ जैसे दो इलेक्ट्रिकल एंड अदर ब्रांचेस, पीपल डोंट नीड टू गेट ऑफेंडेड, बट सिंपली मैं एक कंपैरिजन दे रहा हूं। मतलब दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, मींस पर्सनल फाइंडिंग, दैट से कि इलेक्ट्रिकल में है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है कि करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और या देखा भी है तो इतनी इजीली वो फाइंडिंग नहीं आ पाई। यू नीड वेरियस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड आई डोंट नो द वेरियस इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल। अभी हो सकता है कुछ अवेलेबल हो ऐसा टेक्नोलॉजी उनके पास जो कि दिखाए कि हाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है करंट। जिस तरह आप CS देख लो, कोडिंग पता नहीं वो लोग क्या क्या करते हैं उसके बाद, दे डू वेरी गुड जॉब, आवर फोन्स एंड एवरीथिंग, दोज आर रनिंग ऑन देयर
क्रेडिट होती, बट वो उतनी आसानी से दिखता नहीं है। तो ये जो चीज सिविल की सबसे अच्छी लगती है कि जो दिखता है वही होता है, ठीक है, मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं उसको बहुत आसानी से अपन देख सकते हैं। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार अच्छा क्या हो सकता है कि जो पढ़ रहे हैं इतनी आसानी से दिख रहा है। इस वजह से मुझे सिविल लेना था, लेकिन क्या हुआ कि 12th में चूंकि मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस लो लेवल पे था, और सिविल में चूंकि प्राइवेट जॉब के बारे में मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया था कि प्राइवेट जॉब इज नॉट दैट इजी इन सिविल, तो मेरा था कि क्यों ना CS वगैरह कुछ ले लूं, एटलीस्ट किट में हो जा रहा हूँ तो किट से प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगी ठीक ठाक, तो लाइफ सर्वाइवल विल बी इजी। तो मेरी दीदी ने बोला कि तेरे से CS नहीं हो पाएगा, कोडिंग वोडिंग तेरे बस की नहीं है। तो मैंने बोला कि ऐसा थोड़ी है, हो जाना है। तो वो बोले कि ठीक है तू सिविल अभी ले ले, अगर फर्स्ट ईयर में तू अच्छा एक स्कोर कर लियो, अगर तेरे को CS पसंद आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स होता है, तो तू क्या करना कि चेंज कर लेना अपना ब्रांच। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो आप विश्वास नहीं करोगे माइना कि विद इन 2 or 3 क्लासेज ऑफ दैट बेसिक CPM कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सम कोड वाज देयर, within 2 or 3 classes I thanked God and my sister that I didn't chose CS। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है यार, मतलब क्या हो रहा है, कुछ भी करवा रहा है वो, बस हेलो वर्ल्ड देखने के लिए इतना बड़ा सा प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं अपन, तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, सिविल अच्छा है, सर्वाइवल के लिए अगर अपना इंटरेस्ट है तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर 3 इडियट्स आ गई उस वक्त, तो लगा कि चलो ये तो और अच्छी चीज है करके। तो ऐसे हुआ, फिर सर्वे वगैरह हमने पढ़ा। तो आपका सवाल था कि जैसे कि मैं हमेशा से स्टूडियस रहा till 5th semester। You must be knowing that my close friends know that I didn't miss even a single movie show। So till 5th semester I used to go each and every movie, so that much I was enjoying the college life। 5th semester के बाद यार क्या हुआ कि कभी कभी आपको कुछ सेक्रीफाइसेज करनी होती है अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। तो क्या होता है कि 5th सेमेस्टर के बाद मैंने 6th 7th और इनफैक्ट गेट के एग्जाम तक एक मूवी भी नहीं देखी। तो पहले 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर जो बंदा एक एक शो जा रहा था, वो 2 सेमेस्टर कंटिन्यू एक भी शो नहीं गया। तो दैट थिंग इज रिक्वायर्ड समटाइम्स सम सैक्रिफाइसेस, कुछ खाने के लिए कुछ खोना पड़ता है काइंड ऑफ। लेकिन बात रहा कि पढ़ाई करने की, तो मेरा सजेशन है जितने इंजीनियर है कि आप तो क्या होता है कि अगर आप क्लास में लेक्चर्स वगैरह पे प्रॉपर्ली ध्यान दोगे तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्पेशली मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, खास करके सेमेस्टर्स एग्जाम के लिए। दैट क्लास लेक्चर इज सफिशिएंट इटसेल्फ। तो मेरा यार रूटीन ऐसा कॉलेज में ऐसा ही था कि क्लास में प्रॉपर्ली ध्यान देना है, लेक्चर्स वगैरह कम बंक करने हैं, और फिर बाकी एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले से पढ़ाई करनी, और एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ सॉर्टेड फॉर मी। And for other exams like GATE and all, you have to put an extra effort, there is no doubt in that। तो ऐसा है। और अभी मैं आपका जो एपिसोड है उससे रिलेटेड एक बहुत ही मजेदार किस्सा मेरे दिमाग में आया है। जैसे बोलिए, डेफिनेटली मजेदार किस्सा। तो उसमें क्या था, मैंने भी आपको बताया कि ये लोग ऑफेंड हो जाते हैं मेरे इस ओपिनियन से कि अगर सिविल में सारी चीजें दिखती हैं, बाकी सारे ब्रांचेज जैसे नहीं है। क्या हुआ कि मैं आई वाज टेकिंग एन ओपन इलेक्टिव कोर्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ओपन इलेक्टिव कोर्स इन एट JCRC यूनिवर्सिटी for CS people, I guess, yeah, computer science people। That's an open elective course, so everyone will come। So some people from CS department were there। So ऐसे ही sometime in humor I said civilians are best। तो देखो जो हम लोग करते हैं, जो पढ़ते हैं वो दिखता है, और तुम लोग क्या कोडिंग वगैरह करते हो, कुछ ऐसा दिखता नहीं है। तो करके some humor in class I said, and things got heated up, means they got ज़्यादा seriously ले लिया वो। हाँ, this thing went up to हाँ, वो लोग दिल पे ले लिए कि ऐसा कैसे बोल दिया सर आपने। देवे 3rd ईयर स्टूडेंट, तो उनको लगा कि यार अपन गलत पढ़ रहे हैं क्या कुछ, सर तो ऐसे बोल दिए। तो थिंग्स मतलब थोड़ी सी चीजें बिगड़ सी गई। फिर मेरे को डीन वीन के पास जाके बोलना पड़ा, सर ये दैट वाज जस्ट फॉर ह्यूमर, द स्टूडेंट टुक दैट पॉइंट सीरियस। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल एंड अदर ब्रांचेस पीपल डोंट नीड टू गेट ऑफेंडेड, so this is just my personal finding। तो ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में नए नए जाते हो, तो आपको थोड़ा सा बच्चे आपकी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग रिलेट नहीं कर पाती है। तो those things happen sometimes। तो काफी मजेदार किस्सा रहा आपने जो बताया CS वाला, एंड आपका जो जर्नी बताया आपने वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। अभी
शो रैप अप करने से पहले लास्ट एक क्वेश्चन सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जो सबसे पूछते हैं कि जो आपके बडिंग सिविल इंजीनियर्स हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आपका स्टोरी सुन रहे हैं, जो अभी मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, कोई फोर्थ ईयर में है, कोई जस्ट ग्रेजुएट करने वाला है, अभी तो मतलब वो टेंशन भी बहुत ज्यादा है कि अभी फोर्थ ईयर में है, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोविड का अभी लॉकडाउन सिचुएशन। तो सबके लिए, उन सबके लिए, बडिंग सिविल इंजीनियर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो जो भी बडिंग सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आप बाय चॉइस आए हो तो डोंट एवर जज योर चॉइस, यू आर एट द बेस्ट प्लेस एंड we will warmly welcome you within our civil engineers group. तो कभी भी आप अपने चॉइस को डाउट मत करो कि आपने एक गलत चॉइस किया है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुछ भी है, जैसे अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, तो क्या है कि सबसे पहले अगर किसी चीज में फुल फ्लेजेड अगर कोई चीज स्टार्ट हुआ है तो वो अपना कंस्ट्रक्शन फेज ही है। जैसे हमारे यहाँ भी अभी क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन फेज काफी प्रॉपर्ली, मीन फुल फ्लेजेड तो नहीं लेकिन स्टार्ट हो गया है ठीक ठाक से। लेकिन ये अगर आईटी कंपनीज आप देखोगे तो वो सब वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, जिसका कि आई थिंक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिसका कि ये आउटपुट रिलेटिवली कम होगा। तो आप अभी कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये आप कोविड-19 है तो आपका जॉब वगैरह कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कंपनी वो अपने कंट्री को डेवलप करना ही है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वी नीड सिविल इंजीनियर्स एवरीवेयर। और दूसरी चीज है कि मैं ये सजेस्ट करूंगा लोगों को कि आप, चूंकि मैं जियो टेक्निकल इंजीनियर, तो अपनी अगर बात करो कि फाउंडेशन पे फोकस करो। जैसे कि मैंने बताया कि 10 to 15% कॉस्ट लगता है, लेकिन अगर फाउंडेशन प्रॉपर नहीं है तो पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट दैट विल बी इन वेन। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फाउंडेशन एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम योर सेकंड और मे बी थर्ड ईयर। तो ऐसा है कि आप प्रॉपर क्लास में प्रॉपरली ध्यान दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं आवर यूनिवर्सिटी इज नॉट एट par with our expectation, हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है, उतनी फैसिलिटी नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट देम, भाई एटलीस्ट यू आर इन सम यूनिवर्सिटी दैट इज हैविंग इक्विपमेंट। मैंने लोगों को देखा है कि इनका डिग्री तो है लेकिन उन्होंने एक प्लास्टिक लिमिट टेस्ट, लिक्विड लिमिट टेस्ट का इक्विपमेंट तक नहीं देखा है। अगर वो सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है तो यू आर वेरी मच गिफ्टेड, यू हैव दिस गिफ्ट। क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में यूनिवर्सिटी वगैरह की सिचुएशन है, हायर एजुकेशन का जो सिनारियो, हिसाब से अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये सब चीज दे रही है तो आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लो। ठीक है, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर, बट वंस यू गॉट एडमिटेड इन, यू आर इन सेकंड और थर्ड ईयर, यू हैव नो अदर ऑप्शन। आप उसको कंटिन्यू करो और वहां से पॉजिटिव टेक अवे लो कि क्या क्या पॉजिटिव है। बहुत सारे अपने यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग बोलते थे किट में भी कि दैट प्रोफेसर इज नॉट अप टू द मार्क। मेरा ये कहना है कि ही नोज वेरी मच, मे बी ही इज नॉट एबल टू डिलीवर द थिंग, बट उसके पास हमसे ज्यादा जरूर नॉलेज है। वट एवर सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट इज नोइंग, उससे तो जरूर वो ज्यादा जान रहा है। अल्टीमेटली ही विल टीच समथिंग इन दैट 1 or 1.5 hour lecture. So instead of criticizing him, anyway you have to go to the class. That 75% attendance policy most of the university are following. तो आपको क्लास अल्टीमेटली जाना ही है, आपका 1.5 hour इन्वेस्ट हो ही रहा है, तो क्यों ना उस इन्वेस्टमेंट को आप कुछ ना कुछ टेक अवे लेके जाइए। वो टीचर है, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाएगा। अगर टेक्निकल नॉलेज से नहीं तो अपनी पर्सनल नॉलेज से, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ सिखा के जाएगा। तो मयंक, जो सेकंड पॉइंट था, ये जो फर्स्ट पॉइंट था मेरा, वो था ड्यूरिंग द बैचलर्स कोर्स, मतलब बैचलर्स कोर्स के दौरान क्या सब चीजें रिकमेंडेड हैं। सेकंड पॉइंट जो मेरा है वो है कि आफ्टर द बैचलर्स कोर्स, और यानी कि फोर्थ ईयर वगैरह में, जब आपके ऊपर प्लेसमेंट वगैरह, जब आपको फ्यूचर की चिंता सताने लगती है, तो उस वक्त मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आप सोचो कि डाउन द लाइन 4 to 5 years और मे बी 10 years आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। ठीक है, तो आजकल इतना ज्यादा नेक टू नेक कंपटीशन है कि आप ये नहीं चाहोगे कि मैं सब कुछ कर लूँ, मैं एमटेक भी कर लूँ, मैं एमटेक करते करते साथ में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर लूँ। तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड रिकमेंडेड। तो क्या होता है कि मैंने बहुत सारे बैचमेट्स और अपने फ्रेंड्स को देखा है कि वो एमटेक कर रहे हैं, बस वो एक इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, दैट इज समटाइम्स मे बी नीडेड। तो दैट इज नॉट, मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि वो उनकी जरूरत बन जाती है। तो वो उस सिचुएशन को मैं छोड़ के बोल रहा हूँ कि आजकल इतना नेक टू नेक कंपटीशन है कि आपको इस एक चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि आप या तो अगर आपको किसी जॉब की तैयारी करनी है तो आप उस पर फुल्ली फोकस्ड रहिए, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप गेट के लिए प्रिपेयर कीजिए,
और फिर आप एमटेक या पीएचडी जो भी हायर एजुकेशन है उनको कीजिए। अगर आपको है कि इंडिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, तो आप एमएस के लिए जाइए, फॉरेन में जीआरई लिखिए, ये सब लिखिए, और फिर अच्छा स्कोर करके आप फॉरेन एमएस वगैरह के लिए भी जा सकते हैं। तो यही है कि आप अपना मतलब गोल फिक्स कीजिए। जैसे आपके ही सीरीज में हमने एक देखा था कि इंजीनियर तिवारी पर है, जितेंद्र तिवारी, so he is working in L&T, तो उनका गोल फिक्स था कि हाँ मुझे L&T में ही जाना है और मेरे को अपने को L&T में ही कैरियर बनाना है, मतलब एज ए प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर ही उनको अपना कैरियर बनाना है। जैसे आप इस तरह का एक क्लैरिटी बहुत आवश्यक जरूरी है माइंड में, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो कोविड-19 सिचुएशन है, ये तो मतलब चीजें थोड़ी नाजुक रहेंगी, मे बी 3-4 मंथ, लेकिन उसके बाद चीजें जैसी नॉर्मल होंगी तो ट्रस्ट में सिविल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग दैट विल गेट द मींस बेनिफिट, मींस दैट विल बी गेट द पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम दिस, मींस जो सबसे जल्दी रिकवर करेगा सेक्टर वो सिविल इंजीनियरिंग रहेगा। तो उतना ज्यादा आपको वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, और बस इतना ही है। और बाकी है कि एंजॉय कीजिए लाइफ को, और सिविल इंजीनियर्स हैं तो एंजॉय करना बनता है यार लाइफ। डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स, ये था स्टोरी इंजीनियर कुमार निशांत उज्ज्वल का। जैसे कि आपने देखा उनके स्टोरी में, जब उन्होंने बीटेक किया था तब हमेशा टॉपर ही थे तब, बट ऐसा नहीं है कि लाइफ को एंजॉय नहीं किया, और मूवी देखते तो पूरा बीटेक को एंजॉय किया उन्होंने। और जब टाइम आया प्रिपरेशंस का, तब प्रिपरेशंस भी किए, एंजॉयमेंट थोड़ा सेक्रीफाइस करके। बट उन्होंने मतलब उनके करियर में जो मेन जो मोटो था और मेन जो आपका चीज था जो उनको बाकी लोग से ज्यादा लोगों से अलग बना, कि उनके इंटरेस्ट था एक, जैसे कि उन्होंने एमटेक भी किया तो एक इंटरेस्ट था कि आई वांट टू गो इन दैट फील्ड। जब सिविल इंजीनियरिंग लिए तब भी उनका इंटरेस्ट था कि हाँ जो मैं पढ़ूंगा वो दिखेगा। तो इंटरेस्ट रहना आपके करियर में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वही हमने उनसे सीखा। और अभी वो स्टार्ट किए हैं अपना करियर अंडर बिहार गवर्नमेंट, तो उनको काफी हम लोग सक्सेस विश करते हैं, और मेरे बैचमेट भी हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो उनका अभी तक के करियर के लिए। और आगे मतलब ऐसे ही आप सक्सेस अचीव करते रहिए और हम सबको प्राउड करते रहिए। मेरा एक पर्सनल मैसेज थ्रू योर प्लेटफॉर्म इज, आई थिंक बहुत सारे लोग आपके इस प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे, तो एक पर्सनल मैसेज मेरा ये है कि प्लीज स्टे एट होम अनलेस अनटिल आप बहुत ज्यादा नेसेसरी ना हो, आप घर से ना निकले। ये कोविड सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा मींस अब इंडिया में सिचुएशन मतलब बद से बदतर होती जा रही है। तो जो इसेंशियल्स एक्टिविटी से जुड़े हैं लोग, वो घर से बाहर निकले, अपनी ड्यूटी करें, दैट इज नीडेड। बट नॉन इसेंशियल ड्यूटी से जुड़े लोग वो एंजॉयमेंट के लिए घर से बाहर ना निकले, रिक्वेस्ट, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और सिचुएशन जो है वो सच में क्रिटिकल हो गई अभी कंट्री की। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ आवर civil center team and me personally that stay home, stay safe. Jai Hind. जय हिंद।